And breaking news coming in. Delhi's Environment Minister now blames Aam Aadmi Party and Congress for the pollution. Manjinder Singh Sirsa says air pollution caused by AAP and Congress. Sonia Priyanka did not wear masks last year. That is what Sirsa is saying in the press conference that he had held just a few minutes ago. Sirsa is claiming that the BJP is solving problems and not giving excuses. Remember, the Delhi government has been under a lot of question marks when it comes to the steps that they are taking. The Aam Aadmi Party and the Congress questioning the BJP Sarkar on what steps they will be taking and whether they will be repeating the policies that the Aam Aadmi Party had introduced. And Manjinder Singh Sirsa saying that BJP is solving problems and not giving excuses. In fact, let's listen in to what he has said. दिल्ली के अंदर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका कंप्लाइंट होना चाहिए, आपके पास पीयूसीसी होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो आपकी गाड़ी को तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक आप अपना पीयूसीसी नहीं करवाते. दूसरा, दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक खास तौर पर जिनके अंदर मटेरियल आता है जो कि बदरपुर और रेता है, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बंद है, उनके ऊपर कंप्लीट बैन है. वो दिल्ली में आएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोई बदरपुर रेता नहीं ला सकते. तीसरा, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो दिल्ली के बाहर से आ रही हैं दिल्ली के अंदर, वो क्लीन फ्यूल के साथ आएँ, भारत स्टेज 6 कंप्लायंट आएँ, क्योंकि दिल्ली में अगर आके पोल्यूशन फैलाती हैं तो दिल्ली में हमारे लिए और चैलेंज हो जाता है. जब तक हमारा ग्रैप लगा हुआ है तब तक ऐसी गाड़ियाँ जो नॉन दिल्ली हैं, जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली की गाड़ियाँ नहीं हैं, वो गाड़ियाँ तब तक दिल्ली में नहीं आ पाएंगी जब तक वो अपने भारत स्टेज 6 की कंप्लायंट नहीं होगी. क्लीन फ्यूल गाड़ियाँ ही दिल्ली में आएंगी. 50% वर्क फ्रॉम होम होगा और इसके साथ ही जो मजदूर जो कई दिन से बेरोजगार हैं, जो कंस्ट्रक्शन काम बंद होने से, उनको भी 10-10 हज़ार रुपया महीना दिया जाएगा. तो उन्हीं की बीमारी दी हुई है, हमारी सरकार पे निशाना क्यों साध रहे हैं? प्रियंका गांधी जी बता दें, मैंने उनको पिछले साल का बता दिया. 17 तारीख को 433 था आज के दिन, उन्होंने मास्क लगाया था. सोनिया गांधी जी आप बता दीजिए, 18 तारीख को कल जो आने वाला 450 था, आपने मास्क लगाया था. पिछले दिन में भी 400 कुछ था पिछले साल. मैं पिछले साल का पोल्यूशन बता रहा हूँ, तब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अगर आपने तब ये इशू पार्लियामेंट में उठाए होते तो अब तक ये ठीक हो गया होता. हमें तो आम आदमी पार्टी बीमारी दे के गई है, 10 साल का कूड़े के पहाड़ दे के गई है, जिनको हमने 40% हटा दिया है. टूटी सड़कें दे के गई है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से दोबारा से तैयार कर दिया गया है. दिल्ली को बर्बाद करके और हर साल पोल्यूशन रहता था और बहाने लगाते थे. हम बहाने लगा रहे काम कर रहे हैं. Politics over air pollution continues as the Environment Minister of Delhi claims that it is the Aam Aadmi Party and the Congress which left the pollution crisis for the BJP to solve. Remember, this is not a new issue. Since 2015, we've seen multiple orders coming in from the Supreme Court, from the NGT, from various authorities. The CAQM was specially created to resolve the issue. The entire NCR planning board has been roped in to ensure that when it comes to transport, when it comes to traffic snarls, when it comes to construction, when it comes to introduction of CNG and e-vehicles, all of these rules are put in place. But right now, the BJP claiming that they have inherited the problem from the Aam Aadmi Party and the Congress Party. Remember, this is something that requires long-term measures to be put in place. Anmol Bali is joining me on the phone line on this story. Anmol, you just spoke to the Environment Minister. What exactly is his take on the steps that are actually being taken? Because we've seen what the government is telling the courts when the questions are being asked about accountability. Anmol. Anisha, as you know, that air quality in the national capital is degrading, where we are seeing that the AQI has surpassed the very poor and severe category mark. Amid this, we also witness that politics is also escalating on this issue, where Aam Aadmi Party and the Congress Party, both opposition parties, are targeting the BJP government both in center and as well as in the Delhi. And today we spoke to the Environment Minister, where he told about the various measures taken by Delhi government to curb the air pollution in the national capital. He told that from tomorrow, the vehicles without PUC certificates will not be given fuel at the petrol pumps. They will be using ANPR technique. Via camera, they will be monitoring the number plates, and then the vehicle will be checked that it has a valid PUC, then it will be served fuel. And even the vehicles, non-Delhi vehicles below BS6 mark will not be allowed to enter in the national capital. And on the other hand, strict measures like keeping eye on the construction material entering in the national capital will also be banned, because you know the GRAP 4 provisions are now implemented by the Delhi government to curb the pollution, where the demolition and the building exercise
by the Delhi government has been stopped. So he discussed about the various measures. Even he also targeted the Congress party, Priyanka Gandhi, on this issue, and clearly said that why they were not wearing masks last year when the AQA situation was more worse, as claimed by the Delhi Environment Minister. So clearly the politics is also escalating on this issue, and on the other hand, the government is also claiming that they are working on it to control the pollution situation in the national capital. Anisha. All right, thank you very much for that, Anmol Bali. Politics over, the pollution continues, and smog and fog continue to be a major challenge for the national capital. However, today, Delhi has got a mild respite from air pollution. The AQI is now in the very poor category, down from severe category. The Delhi AQI is likely to remain in this category for the next 2 days. The slight dip in the AQI resulted into slightly better visibility and smoother flight operations at the Delhi airport. The air quality in the national capital may have improved, but there is no end to the politics over the situation. BJP and Aam Aadmi Party have now locked horns over the rising AQI levels in Delhi NCR, as Delhi's Environment Minister Manjinder Singh Sirsa apologized to the people, stating that the government was working hard to fix the issue. The Delhi government has said it would impose strict measures to curb pollution in the national capital. The Aam Aadmi Party, meanwhile, hit out at the BJP, claiming that the Saffron Party had committed fraud on the people of Delhi. AAP even demanded an apology from Delhi Chief Minister Rekha Gupta. मुझे लगता है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बात सही है, और उसको खत्म करने की आवश्यकता है, और पोल्यूशन कर सोल्यूशन निकालने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जरूर पोल्यूशन है, लेकिन उसको मतलब खत्म करने की आवश्यकता है। और दिल्ली में मतलब पोल्यूशन हमें दिखाई देता है नारा, दिल्ली में हमें पोल्यूशन दिखाई देता है नारा, लेकिन उसको खत्म करने वाला नरेंद्र मोदी जी एक जबरदस्त तारा, तो मतलब उसको खत्म करने की कोशिश हमारी चल रही है। मुझे लगता है कि अभी पोल्यूशन जो है, जिस तरह हमारी गाड़ियां चलती है, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलती है, उससे भी मतलब तो धुआं निकलता है, उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है, और क्लाइमेट भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है, फॉग भी मतलब यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये सब बातें उसके लिए खत्म करने का जरूर प्लान हो रहा है। आपके ठीक साथ में खड़े हैं कांग्रेस के सांसद, और उन्होंने जो है मास्क भी पहना हुआ है, और मास्क पहन के आए हैं, क्या कहेंगे आप? ये ही दूरी जो मानसिकता है लोगों की, माननीय सांसद महोदय हुड्डा साहब मास्क पहन के आए केवल फोटो खिंचाने के लिए। मैं बगैर मास्क आया हूँ, वो मास्क लगाकर बात करें। अगर उनको यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा है, वो नौजवान सांसद हैं, वो मास्क को हटाकर बात कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि वो केवल इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर मिलकर सबको काम करना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। We want to know what measurements have already been taken, first to control the pollution and to make sure that in coming days how the pollution will, the AQI will come down in Delhi. Until now there was no proper discussion. Member of parliaments like us don't have an idea what government measurements are and what positive attitude they have towards the sorting out the issue. We don't want to do politics, because even if we do politics on the issues which are not really bothering the people, definitely that will hit us. We are only worried to have a proper discussion on the issues. लॉकडाउन ने 2 महीने में निकाल दिया था इस समस्या का हल। जब आप निकालने पर आओगे तो समस्या का हल निकल जाएगा। और शर्म करो, आप आरोप लगा रहे हो, आप कर कुछ नहीं पा रहे हो। आपने यमुना की सफाई की बात की थी, यमुना का हाल बदतर से बदतर कर दिया आपने। ये बातें बेकार की करते हैं। असल में दिक्कत क्या है, काम तो इनको करना नहीं, बस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है। राहुल जी ने बड़ी बात कही थी कि हम लोग आरोप प्रत्यारोप ना करें, हम लोग समाधान की तरफ चलें। ये समाधान की बात नहीं करते। दिक्कत क्या है, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। जो हालात हैं दिल्ली के AQ लेवल के और तमाम, वो तो बद से बदतर हो गए, और मौजूदा भाजपा की दिल्ली सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। माफ़ी मांगने से मसले का हल नहीं होना। आप तो कहते थे हम यमुना भी साफ कर देंगे, हम ट्रैफिक मैनेज भी कर देंगे, हम जो इंक्रोचमेंट का धूल उड़ता है, शहर पोल्यूटेड होता है, उसको भी ख़त्म कर देंगे। और लगातार दिल्ली में
पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। जो सीरियस इशू है, लोगों के सेहत से जुड़ा इशू है, उसमें भाजपा की दिल्ली सरकार फेल रही है। ठीक है, लेकिन सिरसा जी ये भी कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लोग मास्क पहन के नहीं घूमते थे, क्योंकि आपकी पार्टी के मुखिया और आपकी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का अलायंस था, तो विपक्ष के नेता कहीं आवाज नहीं उठाते थे। अरे ये तो देखो, राहुल गांधी पहले मास्क पहनते थे या नहीं पहनते, ये तो वही जवाब देंगे। लेकिन जो करंटली सिचुएशन है दिल्ली की पोल्यूशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, वो तो बहुत बदतर है। उसके लिए जिम्मेवार तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली की मौजूदा सरकार है। देखिए, मैं सिरसा जी से ये कहूंगी कि आप लोग सत्ता में आए बोल के कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, उसका आप समाधान करेंगे। अब माफी मांगने का क्या मतलब है? आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा दीजिए, किसी और को दायित्व दीजिए। पहले तो आप लोग चीखते थे, चिल्लाते थे केजरीवाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अब आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपको माफी मांगने के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया। देखिए, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि विपक्ष जब फुल फॉर्म में आके लड़ाई लड़ता है तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो उसका संज्ञान ना ले। पोल्यूशन आज सबसे बड़ी समस्या है। जब लोगों के, मैंने खुद देखा है, स्कूल की वैन जा रही है, बच्चे खांस रहे हैं, कर्मचारी, उनके भी जीवन का मोल है। यहाँ सीएसएफ के जवान हैं, यहाँ हमारे संसद में जो कर्मचारी हैं, वो सब लोग हैं। देश के जो इतने जो मंत्रालय हैं उनके कर्मचारी हैं। आप उनके जीवन से खिलवाड़ थोड़ा ही कर सकते हो। आप आज मंत्री जी ने कह दिया, जो दिल्ली के मंत्री है, कि मैं प्रदूषण नहीं रोक सकता हूँ, तो आप बैठे क्यों हो भाई? चुनाव से पहले तो आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे। अब क्या हो गया?